Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. I'm sorry for being late. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good Good afternoon. afternoon, sir. No issue, sir. I'm saying sorry for being late. No issue, sir. You are always on the time, but today, no issue, sir. Thank you. Today we will discuss product planning. This is the next thing in your syllabus, I think. Huh? Yes, sir. Actually, what is product planning? Product planning is actually the systematic determination of the manufacturer's product line. Product planning is the systematic determination of the manufacturer's product line. That is the number of variations, that is the number of variations of products to be offered by the enterprise to the market it serves. माने एक मैन्युफैक्चरर को माने डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस करना होता है, मैंने अपनी प्रोडक्ट लाइन में। तो प्रोडक्ट प्लानिंग seeks to minimize these, say, some risks. Product planning seeks to minimize risks or careful appraisal of actual and potential markets together with an evaluation of firm's resources. ओके तो देखिए प्रोडक्ट हमने क्या बताया, प्रोडक्ट प्लानिंग सीक्स टू मिनिमाइज रिस्क। अब देखिए क्या रिस्क होते हैं। ऊपर हमने आपको बताया कि प्रोडक्ट लाइन में एक मैन्युफैक्चरर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करता है। तो देखिए जब भी नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया जाएगा या कभी कभी जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं उनको रिटेन करना है मार्केट में, तो कभी कभी स्थिति ये हो सकती है कि उनमें से कोई चीज मींस कुछ प्रोडक्ट्स आपके लिए प्रॉफिटेबल ना हो। राइट, तो दीज आर द टाइप्स ऑफ रिस्क्स। तो इन्हीं रिस्क को कम करने की बात हो रही है कि दीज रिस्क्स में बी reduced or may be overcome through product planning। मैंने खत्म तो नहीं कर सकते बट मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह से बताया, थ्रू केयरफुल अप्रेजल ऑफ एक्चुअल एंड पोटेंशियल मार्केट्स टुगेदर विद
and evaluation of firms' resources. And there is another word also for this product planning, that is called merchandising. And this word answers the basic questions relating to product as what, how much, when, where, at what price, for whom, of what quality, and so on. Right? Okay. So this product planning is the most effective method developed to meet the challenges of new product demand. Challenges of new product demand, shorter product life, more complicated technology, improvement of existing products, and accelerating the rate of product change. All right. So note down one definition. This is simple introduction of product planning. So actually note down one definition of this product planning within inverted comma. The act of marketing, the act of marketing out and supervising the search, screening, development, and commercialization of new products that is a semicolon, the modification of existing lines, and the discontinuance of marginal or unprofitable items. Marginal or unprofitable items. Inverted comma close. This is the definition of Mr. Carl H. Teijen. Tietjan. Teijen. This is the definition of product planning. Actually, on the basis of introduction and this definition, we can now understand in nutshell, in crux, what is product planning. Actually, in nutshell, product planning is that crucial task. In nutshell, product planning is that crucial task concentrating on development and
introduction of new products, modification of existing ones, नोट कर रहे हो कॉमा कॉमा लगा लीजिएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, कॉमा modification of the existing one to meet changing needs of consumers and dropping altogether marginal and unprofitable products. माने नए प्रोडक्ट्स हम इंट्रोड्यूस करेंगे, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में मॉडिफिकेशंस करेंगे अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ कंज्यूमर्स, और जो भी प्रोडक्ट्स हमारे अनप्रॉफिटेबल है या बिल्कुल मार्जिनल लाइन पर हैं, उन प्रोडक्ट्स को हम ड्रॉप कर देंगे, माने उनको छोड़ देंगे, उनका प्रोडक्शन बंद करेंगे. Again, precisely it is the process of selecting the product to meet the needs of consumers and implementing the product strategies and for managing the performance of the product mix. And for managing the performance of the product mix. Is it clear? Product planning is clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, what are objectives of product planning? हम लोग क्यों करते हैं प्रोडक्ट प्लानिंग, क्या ऑब्जेक्ट्स हैं? Actually, this activity, product planning activity, is carried out or say is designed to attain or achieve or fulfill some specific objectives. हाँ? उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हम डिस्कस करते हैं हम लोग. पहला है टू मीट द कंज्यूमर नीड्स. To meet the consumer needs. Actually, this product planning is a dependable tool in the kit of a marketing manager. माने marketing manager जो कुछ भी करता है, उसके जो भी उसके पास रास्ते हैं, उपाय हैं, उनमें प्रोडक्ट प्लानिंग एक डिपेंडेबल, फेथफुल टूल है. काहे के लिए? टू अटेन दिस अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव. क्या? टू सेटिस्फाई कंज्यूमर नीड्स, टू मीट द कंज्यूमर नीड्स. It is the product planning only that identifies the consumer needs, requirements, aspirations, likes and preferences, and guides the firm's resources and efforts towards the accomplishment of this want satisfying. Clear? Yes, sir. First objective is clear. Now, second one, next objective. Next one is to spotlight firms' strengths and weaknesses. To spotlight firms' strengths and weaknesses. Actually, in modern world,
when we try to find out strengths and weaknesses, we carry out an analysis that is called SWOT analysis. I think you people have heard of this SWOT analysis. Very common word nowadays. SWOT analysis. सुना हुआ होगा? Yes, sir. Actually, through this only we identify a firm's strengths and weaknesses. अब देखिए इसमें प्रोडक्ट प्लानिंग कैसे हेल्प करता है? तो इट इज प्रोडक्ट प्लानिंग ओनली that brings these strengths and weaknesses to spotlight, because the future plan, that is the blueprint of action, is founded on this set of given strengths and weaknesses. तो रिजल्ट क्या होता है? Thus, pinpointing the strengths and weaknesses become another object of product planning, so that the products would be so devised as to minimize the weaknesses and maximize the strengths. Right? मैंने पहले थ्रू प्रोडक्ट प्लानिंग हम लोग स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करेंगे, एंड विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट प्लानिंग हम प्रोडक्ट को इस तरह से डिवाइस करेंगे जिससे कि हमारी वीकनेसेस मिनिमाइज हो जाएं और हमारी स्ट्रेंथ्स मैक्सिमाइज हो जाएं. गॉट इट? Yes, sir. Then next objective is to fortify better resource utilization. मैंने जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका हम और बेटर यूटिलाइजेशन करें. In this also this product planning helps as a tool. So it is the product planning that rests heavily on the nature and extent of internal resources. Right? It is the product planning that rests heavily on the nature and extent of internal resources. जो भी हमारे पास हैं उन्हीं के बेसिस पर हम प्रोडक्ट प्लानिंग को इंप्लीमेंट करेंगे. प्रोडक्ट प्लानिंग माने प्लान करेंगे और इंप्लीमेंट करेंगे. ऐसा क्यों करना जरूरी है? इससे और क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होगा जो कि मेन ऑब्जेक्टिव होता है हर मैन्युफैक्चरर का, क्या कि एवरी मैन्युफैक्चरर और एवरी कंपनी is always committed to resources involving a definite cost structure. Okay? And this minimum cost level of production is possible. माने अपनी cost of production को minimum कब कर पाएंगे? Is possible only when the company's resources are geared to its production plan. मैंने अकॉर्डिंग टू प्लान हम बहुत बढ़िया बनाएंगे. हर चीज के प्लान हम बढ़िया बनाते हैं, बेस्ट बनाते हैं.
अकॉर्डिंग टू अवेलेबल रिसोर्सेज बनाते हैं, मींस जो हम उसका इम्प्लीमेंटेशन करें वो अकॉर्डिंग टू प्लान हो। समझ में आ गई बात? ओनली देन वी कैन बी एबल टू यूटिलाइज आवर रिसोर्सेज इन द बेस्ट वे, डोंट से इन बेटर वे, बल्कि बेस्ट वे। The next objective is to guarantee firm's survival. To guarantee firm's survival. तो क्या होता है कि जो प्रोडक्ट होता है वो एक फर्म के सर्वाइवल के लिए सबसे बड़ी होप होता है। भाई फर्म सर्वाइव कब करेगी कि कंपनी जो भी बना रही है वो बिके, खूब ज्यादा बिके, तभी तो कंपनी को प्रॉफिट भी अर्न करेगी। हाँ, तो प्रोडक्ट इज द होप फॉर द फर्म्स सर्वाइवल। राइट? The product that meets the ever changing needs of customers, यानी जो प्रोडक्ट कंपनी कस्टमर्स की सारी नीड्स को पूरा करेगा, makes the firm to survive successfully as it becomes adaptive. कस्टमर किस चीज को खरीदना पसंद करेगा? जो उसकी मैक्सिमम नीड्स को पूरा करे। और जब उस प्रोडक्ट को खरीदेगा और वही प्रोडक्ट आप बनाएंगे तो क्या होगा? कंजम्पशन भी होगा। कंजम्पशन होगा मींस वो डिमांड सप्लाई करने के लिए आपको मैन्युफैक्चरिंग खूब करनी होगी, और जब खूब आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेंगे वो खूब सेल होगा तो आपको प्रॉफिट भी होगा। राइट? Product innovation and renovation are the two keywords regarding survival. Product innovation and renovation are the two keywords that are to be given due weightage by a firm. बल्कि ये कहिए by all the firms. क्यों? क्योंकि all the firms want to survive for many more years to come. Means for survival, product innovation and renovation, these are the two keywords जिनको की प्रॉपर वेटेज एक कंपनी को देना चाहिए, जो कि लंबे समय तक सरवाइव करना चाहती है। तो हर कंपनी सरवाइव करना चाहती है। कौन सी कंपनी ऐसी होगी जो ये चाहे, जो ये चीज नहीं चाहेगी या ये चाहेगी कि हम कुछ समय बाद हमें काम बंद कर देना है? राइट? माने स्पेशली एफएमसीजीज जो आइटम्स है वो तो कंपनी कभी नहीं चाहेगी। वो बात दूसरी है कि कोई कंपनी किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए ही स्टेब्लिश की गई हो, और जैसे ही वो ऑब्जेक्ट पूरा होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो कंपनी फिर वाइंड अप की जाएगी, लिक्विडेट की जाएगी। राइट? अदरवाइज लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी के संबंध में क्या कहा जाता है? हैविंग परपेचुअल लाइफ, मींस जितने लंबे समय तक संभव हो कंपनी सरवाइव करे। समझ आ गई बात? तो इट इज द प्रोडक्ट प्लानिंग दैट प्रिडिक्ट्स द लाइकली चेंजेस इन द प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजीज, product ideas, inputs, so that the latest can be given to make even the greatest a thing of the past. ठीक है बेटा? समझ आ रहा है सबको कि हम बस बराबर बोलते जा रहे हैं और आप लोग भी आ रहे हैं सर।
नहीं सुन रहे हैं, फॉर्मेलिटी हो रही है, तो सर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये नहीं लगना चाहिए और ना ही ये होना चाहिए कि हम लोग बस एक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं और वो फॉर्मेलिटी पूरी हो रही है। ये नहीं होना चाहिए। हाँ, कि अगर मान लो कहीं कोई चीज नहीं समझ में आ रही है या कोई चीज प्रॉपरली सपोज हम नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, तो आप लोग पूछो भी। Okay, then next objective is to increase firm sale. To increase firm's sale. तो देखिए सेल्स के संबंध में एक सिंपल चीज समझ लीजिए कि सेल्स आर लाइक मिल्क कैपेबल ऑफ गिविंग मच वारंटीड क्रीम। सेल्स आर लाइक, रिगार्डिंग सेल्स में कह रहा हूं, सेल्स आर लाइक मिल्क, दूध की तरह है, कैपेबल ऑफ गिविंग मच वारंटीड क्रीम। कि अगर दूध है ठीक है, तो जितनी ज्यादा दूध होगा उतनी, और आप उसमें से क्रीम निकालना चाहें तो उतनी ज्यादा क्रीम आपको मिलेगी। मीन्स जितनी ज्यादा सेल होगी उतने प्रॉफिट होगी। समझ आई बात? ठीक है ना? वही चीज फिर हम आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वारंटीड क्रीम, क्रीम की तो बात हो रही है, बट दिस अमाउंट ऑफ क्रीम डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ मिल्क। और ये जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी ऑफ क्रीम कैन बी इंक्रीज्ड बाय जनरेटिंग मोर मिल्क। ठीक, तो कंपनी तो मैंने एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं क्रीम का और मिल्क का, तो यहां पर मिल्क का मतलब सेल्स है और क्रीम का मतलब प्रॉफिट है। कि एवरी फर्म रेस्ट्स ऑन सेल्स as the only source of income to meet the outgoes and retain decent margin to justify its hard work of putting resources and taking risks. ठीक है? And in now today nowadays this has become very difficult because of keen competition or say cutthroat competition in the market. समझ आ गई बात? Regarding increasing firm sale, समझ आ गई बात? Yes, sir. Okay, now components of product planning. Components of product planning. Actually, there are 4 components. That is product innovation, product diversification, product standardization, and lastly, product elimination. Right? So, I will try to explain all these components one by one. I'll try my best to make you people understand. So first one is product innovation. Actually, an innovation is the adoption of a new idea, product, or process which is prospectively useful, which is prospectively
यूजफुल। मैंने हम कोई भी नया आइडिया, प्रोडक्ट या प्रोसेस उसको अडॉप्ट करेंगे। इनोवेशन का मतलब क्या है कि किसी भी, इनोवेशन का मतलब न्यू आइडिया हो। हाँ बेटा, सर इनोवेशन का मतलब न्यू आइडिया हुआ ना, न्यू आइडिया, न्यू yes, इनोवेट करना, कुछ न्यू इन्वेंशन। yes, that is what I'm trying to explain. कि innovation means a new idea, product or process, उसको adopt करना, उसको आगे बढ़ाना। तो innovation is the adoption of a new idea, product or process. और वो कैसा हो, जिसके prospects useful हो, prospects अच्छे हो, which is prospectively useful, right? And the idea of innovation is much broader than invention. बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बोल रहा हूं। The idea of innovation is much broader than invention, right? कैसे कि invention refers to physical output, invention refers to physical output, and in this sense invention is the antithesis of evaluation or the relatively straightforward application of existing knowledge, right? And regarding innovation, every change is not an innovation. Every change is not an innovation. Innovation is present only when the innovator is required to engage in productive problem solving. Innovation is present only when the inventor is required to engage in productive problem solving. Okay? Innovations induce demand and seek an opportunity to serve the present and potential market at a profit. That means to translate the idea into products and products into profit. समझ आ गई बात? समझ आ गई बात? जी सर। हाँ, कि हम जो भी सोचे, जो भी इनोवेशन हो, उसको हम प्रोडक्ट में चेंज करें और प्रोडक्ट को चेंज करें प्रॉफिट में। मैंने प्रोडक्ट बनाए, उसको बेचें और फिर उसको हम प्रॉफिट अर्न करें। दैट इज प्रोडक्ट innovation. Now second one is product diversification. Product diversification. Actually, product diversification refers to the product expansion in the depth or in width. डेप्थ और विड्थ समझ गए ना? गहराई और चौड़ाई। हाँ, डेप्थ ऑफ प्रोडक्ट लाइन इंप्लाइज, डेप्थ का क्या मतलब हुआ? डेप्थ ऑफ द प्रोडक्ट लाइन का मतलब क्या हुआ? इंप्लाइज
सॉरी बेटा, सर डेप्थ का मतलब गहराई हुआ ना? yes, 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 yes. Depth of the product line implies the assortment of color, sizes, designs, quality, etc. ठीक, जैसे आप एग्जांपल अगर आप कलर का देखो, तो जैसे देखो जो आज प्रेजेंट टाइम में जो कंपनी है जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर है, उसकी जो सोप लाइन है उसमें डिफरेंट कलर के सोप्स हैं, ग्रीन भी है, येलो भी है, लाइक दिस व्हाइट भी है, पिंक भी है। और दूसरा पार्ट हमने क्या बताया था, विथ, ऑन द अदर हैंड विथ ऑफ द प्रोडक्ट, इसका क्या मतलब हुआ? तो विथ ऑफ द प्रोडक्ट लाइन का मतलब है रिफर्स टू द नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइंस। जैसे हिंदुस्तान लीवर का ही एग्जांपल ले लो, टूथपेस्ट हैं, कौन कौन से टूथपेस्ट आते हैं हिंदुस्तान लीवर के, हिंदुस्तान यूनिलीवर के टूथपेस्ट कौन कौन से आते हैं पेस्ट? कोलगेट, पेप्सोडेंट, क्लोजअप भी आता है सर। हाँ, कोलगेट, बबूल भी पेप्सोडेंट, आता है। क्लोजअप। और हम एक चीज बोल रहे हैं, हम कंफ्यूज हैं थोड़ा सा कि जैसे कोलगेट का है, कोलगेट भी यूनिलीवर का ही है या कोलगेट पॉमलिव का है? नहीं सर, कोलगेट, पेप्सोडेंट दोनों ही हिंदुस्तान यूनिलीवर के ही हैं। राइट, तो ये क्या हो गया, विथ ऑफ प्रोडक्ट लाइन। समझ में आ गई बात? Actually, diversification brings growth and stability to the organization. It adds to the profits. डाइवर्सिफिकेशन से ग्रोथ भी होगा, स्टेबिलिटी भी आएगी और साइमल्टेनियसली प्रॉफिट भी, हमारा प्रॉफिट अर्निंग भी बढ़ेगी। So this product diversification has its benefits if handled with care. If handled with care and caution, as it has been as if has not been success in all the cases alike. अगर इसको केयरफुली हैंडल नहीं किया गया तो फिर जरूरी नहीं है कि इसके रिजल्ट्स हर एक को, हर कंपनी को सेम ही मिले, मैंने फिर चेंज हो जाएंगे रिजल्ट्स, एडवर्स भी हो सकते। ठीक है, then next third one is product standardization. Product standardization. Standardization is the byproduct of simplification of goods.
Standardization is the byproduct of simplification of products. Generally, what we found, कि varieties are simplified and then the products are standardized. Standardization is an efficient vehicle of development through improved productivity, streamlined economic relations, enlarged trade, and in facilitating transfer of technology. And in facilitating transfer of technology. Okay? Product standardization gives protection to consumers and producers alike. माने दोनों को प्रोटेक्शन दे. Standard is a quality, economy, convenience, performance and value. स्टैंडर्ड में ये सब चीजें शामिल होंगी. क्लियर? ये चीज क्लियर हो गई? Yes. आप लोग सुन रहे हो या मैसेजिंग वॉर में फंसे हो? मैसेजिंग वॉर भी चल रहा है बीच में. No, sir, we all are listening. नहीं, बीच बीच में मेरी नजर पड़ जाती है. वैसे तो हम आंख बंद करके पढ़ा रहे हैं, कंसंट्रेट करके प्रयास कर रहे हैं, तो हम देखते भी नहीं है स्क्रीन की तरफ, मैसेजेस की तरफ, जो भी रिटर्न आप लोग भेजते हो. मगर बीच बीच में एक आध बार आंख खोली तो नजर पड़ी कि मैसेज वॉर चल रहा है. डाउट है, इसीलिए हम नहीं बोल रहे हैं. और मैंने बहुत दिन से, या मैंने आई एम नॉट कंज्यूमर ऑफ कोलगेट, तो ज्यादा हो तो एक बार कोलगेट खरीद लेना है, दुकान में जाके देख लेना, लिखा हुआ मिल जाएगा कि, और बाकी दो चीजें लिखी रहती हैं देखो हर प्रोडक्ट में, मैन्युफैक्चर्ड बाय और मार्केटेड बाय. ठीक है? मगर जो ये बड़े बड़े ब्रांड होते हैं, एमएनसी, ये सब मैन्युफैक्चरिंग दूसरों से ही कराती हैं और वो लिखती हैं मैन्युफैक्चर्ड बाय दिस एंड मार्केटेड बाय दिस. ऐसा होता है ना? जी सर. ओके, नाउ क्लियर नाउ? सर प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन में आपने बोला है कि ये कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों को ही प्रोटेक्ट करता है. सर थोड़ा इसको सर क्लियर कर दीजिए. अरे भाई, ईमानदारी किसको नहीं अच्छी लगती है ये बताओ. ईमानदारी अगर हर व्यक्ति, जो प्रोडक्ट हम दे रहे हैं अगर वो माने वो सारे स्टैंडर्ड्स पूरे कर रहा है, तो हम भी निश्चिंत हैं कि हम बेस्ट चीज दे रहे हैं, प्रॉपर चीज दे रहे हैं. तो हमको भी फायदा क्या कि कोई किसी भी तरह का क्लेम नहीं कर सकता. कस्टमर को क्या फायदा कि उसको कहीं से कोई भी नुकसान नहीं होगा. तो दोनों को फायदा होगा कि नहीं होगा? ओके सर, थैंक यू. Okay, now next and last one, product elimination.
प्रोडक्ट एलिमिनेशन और से टर्मिनेशन और से विड्रॉल, तीनों सेम चीजें हैं, हाँ, बिकम्स अ नेसेसिटी, जरूरी हो जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स रिड्यूस्ड इफेक्टिवनेस, कि उसकी जो प्रभावशीलता है वो कम हो रही है। प्रभावशीलता कम होने का मतलब यहां पर ये है कि उसकी सेल कम हो रही है, और सेल कम हो रही है तो कंपनी के लिए वो एक वाइबल प्रोडक्ट नहीं प्रूव हो रहा है। ठीक, दैट मीन्स it has a strong substitute. It has declining sales trend. It has decreasing price trend and profit. Or it is consuming disappropriate executive time. ठीक, मैंने कोई भी रीजन हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है। और जब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हम लोग पढ़ रहे थे कल, तो उसमें लास्ट स्टेज ही यही थी, क्या? प्रोडक्ट एलिमिनेशन, यही तो था ना। एलिमिनेट हो जाएगा प्रोडक्ट, मैच्योरिटी के बाद डिक्लाइन, डिक्लाइन का मतलब क्या? एलिमिनेशन। ठीक है, एक्चुअली अ फर्म इज एक्सपेक्टेड to have a definite system of product elimination. Why? Because it's not an easy task. कि आप बस सोच लीजिए हमें प्रोडक्ट अब नहीं बनाना है, तो बस ओवरनाइट आपने जो है फैक्ट्री में ताला डाल दिया, प्रोडक्शन लाइन बंद कर दी। ऐसा नहीं होगा। और अगर आप उसको इतना ही लाइटली लेके बंद करेंगे तो क्या होगा? कितना सारा फाइनेंशियल लॉस होगा। सबसे बड़ी चीज, फर्म के लिए डिमोरलाइजेशन होगा। और उससे भी बड़ी चीज कि इस तरह से प्रोडक्ट को एलिमिनेट करना साइकोलॉजिकली भी हार्मफुल हो। इस बात से सहमत है कि नहीं? इस बात से सहमत है कि नहीं? यस सर। कैसे बताओ, जस्ट प्रूव। सर जब हम किसी प्रोडक्ट को बंद करते हैं या उसके मैन्युफैक्चरिंग बंद करते हैं, इसके मल्टीपल इफेक्ट्स होते हैं। एक तो मैन्युफैक्चरर के साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है कि ही इज नॉट गेनिंग समथिंग। एक तो फिक्स कॉस्ट की भी लॉस होगी, उसकी मैन्युफैक्चरिंग बंद हो जाएगी, देन वेरिएबल कॉस्ट जो इन्वॉल्व है वो भी लॉस में जाएगा। तो एक लॉस का साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, वो एम्प्लॉयर जो मैन्युफैक्चरर उस पे पड़ेगा। देन एम्प्लॉइज पे भी साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ेगा बिकॉज द प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी ऑफ और प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, देन दे विल लॉस फ्रॉम देयर एम्प्लॉयमेंट। तो ये इफेक्ट साइकोलॉजिकली उन पे पड़ते हैं। अब जैसे ये टाटा कंपनी है, पहले जो है टाटा और प्रीवियसली यही कंपनी थी हिंदुस्तान यूनिलीवर, इसको कहते थे हिंदुस्तान लीवर। एफएमसीजी के सेक्टर में यही दो कंपनियां थी। तो जैसे बाथिंग सोप में खूब कंपटीशन था, वॉशिंग सोप में भी कंपटीशन था। तो जैसे टाटा कंपनी का एक प्रीमियम सोप आता था, मोती सोप करके, मोती
नाम सुना है? नो सर। नहीं सुना। सर ब्रीच सुना है, ब्रीच भी तो शायद हिंदुस्तान यूनिलीवर का था। हम टाटा की बात कर रहे हैं बच्चा। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सर। तो एक प्रीमियम उनका ये सोप आता था मोती, ठीक है। और जैसे आप देखें कि नॉट ओनली मोती, धीरे धीरे टाटा ने अपने को ये एफएमसीजी सेक्टर जो है, माने जो कंज्यूमेबल आइटम्स हैं, इस सेक्टर से अपने आप को विड्रॉ कर लिया। टू एन एक्सटेंट कंपटीशन में उस समय गोदरेज कंपनी भी थी, मगर आज की डेट में गोदरेज तो अवेलेबल है एफएमसीजी सेक्टर में, बट टाटा हैज विड्रॉन। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि साइकोलॉजी तो ह्यूमन बीइंग की डिस्टर्ब होगी ना, ह्यूमन बीइंग की साइकोलॉजी में एडवर्स इफेक्ट आएगा। और कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, नहीं है? बोलो। यस सर। तो फिर कैसे एक आर्टिफिशियल पर्सन की साइकोलॉजी कैसे गड़बड़ करेगी या एडवर्सली इफेक्ट होगी? बताइए, यू ऑल आर प्री पीएचडी स्टूडेंट और से पीएचडी स्टूडेंट्स। Should I repeat question? Should I repeat? नो सर। Yes, then please answer. सर जो जनरल पब्लिक है वो उस प्रोडक्ट को यूज करती होगी तो उसे ये लगता होगा कि प्रोडक्ट बंद हो गया है तो वो कुछ और अडॉप्ट कर लेगी सर। आप कहीं से अकेले, सर वॉइस नहीं आ रही प्रॉपर आपकी। मैं ये कह रहा हूं आप कहीं बात पे हो क्या? नो सर। नहीं, बहुत सारा शोर आ रहा है जब आप माइक। और अदर थिंग इज कि आपने मेरा क्वेश्चन ही ध्यान से नहीं सुना है। हमने क्या क्वेश्चन पूछा बेटा? हेलो। हमने इधर क्या आपने ये पूछा कि अगर एक कंपनी अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को मार्केट से हटा लेती है तो इसकी साइकोलॉजिकल इफेक्ट कंज्यूमर पर क्या पड़ता है? नो नो। कोई और बताइए, हमने क्वेश्चन क्या पूछा? एनीवन एल्स? आप प्लीज अपना माइक ऑफ कर दीजिए। एनीवन एल्स? पहले ये बताओ मैंने क्वेश्चन क्या पूछा? सर यहाँ पे कंज्यूमर की साइकोलॉजी नहीं, कंपनी की साइकोलॉजी के बारे में आपने। तो what was my specific question? सॉरी सर। What was my specific question? How the product elimination will affect the company's psychological position, uh, if it is a company is an artificial person. As the company being a artificial person. Yes, it is the question. Now answer.
सर अगर कंपनी अपने प्रोडक्ट को एलिमिनेट कर देगी, मार्केट से बाहर निकाल देगी, तो वो अपनी कॉस्ट को बियर नहीं कर पाएगी। तो इससे क्या होगा कि कंपनी की जो मार्केटिंग पोजीशन है, हो सकता है वो भी डिस्टर्ब हो जाए। कस्टमर्स को लगे कि अब प्रोडक्ट जो है कंपनी का आना बंद हो गया है, तो शायद कंपनी भी बंद हो गई है, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, इसका एक लेटेस्ट एग्जांपल बताओ पहले। चलो एक नया क्वेश्चन पूछ दिया, इसका कोई लेटेस्ट एग्जांपल बताओ। सर मार्केट में ऐसे बहुत से ब्रांड है जो आना बंद हो गए हैं, जैसे कि हम एग्जिस्टिंग ब्रांड्स की बात कहें, जैसे अभी आप ये एक स्मार्टफोन देख लीजिए, नोकिया ने लॉन्च किया था, बट वो लोगों को पसंद नहीं आया और उसके यूजर धीरे धीरे कम हो गए, लोगों ने बाय करना बंद कर दिया, तो कंपनी ने अपनी प्रोडक्शन भी बंद कर दी। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हम हमारी बात सुनो। अभी अभी कौन बोल रहा था? इसके पहले कौन बोल रहा था? सर मैंने हाँ, हम आपसे कन्वर्सेशन कर रहे थे बेटा। जी सर। एकता जी माइक बंद करिए अपना। हाँ, हम आपने जो ये कहा था, तो मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि अभी लेटेस्ट में ही जी सर। हाँ एक कंपनी, माने मल्टीनेशनल कंपनी है, ऑटोमोबाइल सेक्टर की है, हम पूरी आपको हेल्प दे रहे हैं। उसने अपना उसके साथ यही चीज घटित हुई है, जस्ट जो आपने बोली थी। जो कस्टमर को लगता है कि कंपनी ही बंद हो गई है। नहीं, वो बंद हो ही गई है, और उसका कस्टमर्स पर क्या इफेक्ट हो, अभी आप उस संबंध में बोल रहे थे। तो कौन सी कंपनी है ऑटोमोबाइल सेक्टर की? जी सर, सर मुझे नहीं पता सर। फोर्ड सरकार की है, फोर्ड। यस यस, करेक्ट, वेरी करेक्ट। मल्टीनेशनल कंपनी है फोर्ड। उसने बिजनेस सॉरी उसने इंडिया में अपना मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी, मगर उसका उसके कस्टमर्स पर और उसकी ओवरऑल गुडविल पर वर्ल्ड वाइड एडवर्स इफेक्ट ना पड़े, तो वो बार बार इस चीज को सेटिस्फाई कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को, कि स्पेयर पार्ट्स एंड सर्विसिंग फैसिलिटी विल बी गिवन। जितना प्रोडक्ट उन्होंने बेच दिया है, जिन कस्टमर्स के पास है, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। Am I right? शुभम जी, यस सर। अभी किसने मैसेज किया था? प्रदीप जी, अभी किसी ने मैसेज किया था, फोर्ड आंसर दिया था। अभी किसी ने आंसर दिया था फोर्ड मैसेज पे, किसने किया था? अभी किसी ने मैसेज, टेक्स्ट मैसेज भेजा था। शुभम दीक्षित। हाँ, कहाँ है शुभम जी? शुभम जी कहाँ है? शुभम दीक्षित जी कहाँ हैं? शुभम दीक्षित जी कहाँ हैं? हाँ, शुभम जी कहाँ हैं? अभी अभी ज्वाइन किया उन्होंने। यस सर। कहाँ चले गए थे भैया? सर नेटवर्क इशू आ गया था। अरे मैसेज भेजते ही नेटवर्क इशू आ गया। हाँ सर। हाँ, नेटवर्क भी बड़ी महान महिमा है नेटवर्क की, जो चाहे वो करे, हैं? सही बात है सर। जब चाहे आ जाए, जब चाहे चला जाए, जब चाहे हम लोगों को भी ऑनलाइन ले आवे, जब मनाए तब ऑफलाइन ले जाए, है ना? चलो, तो अब फिर वहीं पर हम आकर के हम रुक रहे हैं। ओरिजिनल जो क्वेश्चन था, एज एन आर्टिफिशियल पर्सन,
उसका आंसर देगा कोई? सर जैसे आपने पहले बोला था कि टाटा ने एफएमसीजी प्रोडक्ट से अब कोई मैन्युफैक्चरिंग उसमें फर्दर नहीं की, तो ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट ही तो हुआ कि वो उसमें जाने से डर रहे हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट सेगमेंट में। नहीं, वो उनके लिए फ्रूटफुल नहीं था इसलिए बंद किया। हम वो चीज नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि एज एन आर्टिफिशियल पर्सन हाउ डज कंपनी साइकोलॉजी इज अफेक्टेड? साइकोलॉजी तो एक जीवित व्यक्ति की होगी ना, आर्टिफिशियल पर्सन की भी होगी क्या? सर वो कंपनी के ब्रांड के ऊपर लोगों का ट्रस्ट नहीं होगा फिर। हाँ बेटा, सर लोगों का ट्रस्ट कंपनी के ऊपर से हट जाएगा, उसका ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, उनकी ब्रांड बिल्डिंग डिक्रीज होती जाएगी। अरे आप बात ही नहीं समझने का प्रयास कर रहे हो। मैं ये कह रहा हूं कि साइकोलॉजी जो है वो एडवर्सली अफेक्ट होती है किसकी? ह्यूमंस की सर, आर्टिफिशियल पर्सन की नहीं होती है। हाँ, ह्यूमंस की साइकोलॉजी इफेक्ट होती है, आर्टिफिशियल पर्सन की साइकोलॉजी कहाँ इफेक्ट होगी? वही तो मेरा क्वेश्चन है, वही तो मैं पूछना चाह रहा हूं। सर आर्टिफिशियल पर्सन की साइकोलॉजी पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पर उसकी गुडविल पे इफेक्ट जरूर पड़ेगा सर। अरे फिर वही बात, तो गुडविल भी तो आर्टिफिशियल ही है, फिक्टिशियस ही है। गुडविल फिक्टिशियस एसेट है ना। जी जी जी। तब फिर बताओ। नो आइडिया। अरे और कोई बोलो, कितने अभी इस समय 21 माने 20 पीपुल्स आर देयर। अब 20 लोगों से हम ये प्रश्न पूछ रहे हैं, तो कोई ना कोई तो बोलो भाई। अभी कल पढ़ोगे रिसर्च, मार्केटिंग रिसर्च, कल इस पे डिस्कस करेंगे। तो उस लेवल तक के आप सोचिए भी तो। अब हम ये क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं और उस क्वेश्चन पर टिके हुए हैं, तो कोई ना कोई तो रीजन है, कोई ना कोई तो लॉजिक है पूछने का, और कोई ना कोई आंसर है इसका। बताइए। बताइए, पूरे 20 लोगों से मेरा क्वेश्चन है, ये ओपन क्वेश्चन है। No one is ready to answer. जो भी 2, 3, 4 लोगों ने बोला या आंसर दिया, वो सब लोग बधाई के पात्र हैं। Means they are active listeners, they are trying to answer at least. यस सर। It's not possible every time whatever you will answer will be correct only. और सिर्फ इस फियर के कारण ना बोलना कि नहीं हम जो बोलेंगे वो गलत होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। तो इन कम्युनिकेशन फियरफुल नहीं होना चाहिए। सर यस प्लीज। सर एक कंपनी का सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, तो आपने कहा कि जब कंपनी अपना प्रोडक्ट विड्रॉ कर देती है तो उसके ऊपर क्या साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है? कंपनी तो खुद ऑपरेट नहीं करती है, उसके जो क्रेडिटर हैं या शेयर होल्डर है उन पे इम्पैक्ट पड़ेगा साइकोलॉजिकल। आप कुछ हद तक बिल्कुल ठीक पहुंच रहे हैं। जी सर। Company is actually an artificial person created by law having
perpetual legal entity, परपेचुअल सक्सेशन सर एंड लीगल एंटिटी सक्सेशन। हाँ लीगल एंटिटी एंड परपेचुअल सक्सेशन, ठीक है, इस तरह से है। तो देखो कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, बट पर्सन है ना, आर्टिफिशियल है। क्यों? क्योंकि कंपनी के बिहाफ पर फिर बाकी लोग काम करेंगे ना, बाकी लोग कंपनी के बॉडी पार्ट्स बनेंगे ना। इसीलिए कहा जाता है, अगर पढ़ा हो आप लोगों ने, कि डायरेक्टर्स आर द ब्रेन्स ऑफ द कंपनी। डायरेक्टर्स आर द ब्रेन ऑफ द कंपनी, while secretary is the eyes, while secretary is the company secretary is the eyes, ears and hands of the company. ये पढ़ा है ना, सुना है ना? ठीक। साइमल्टेनियसली ये भी सुना होगा कि इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। तो एज एन आर्टिफिशियल पर्सन, इवन डायरेक्टर्स, कंपनी सेक्रेटरी, शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉइज, ये सब आर्टिफिशियल पर्सन के बॉडी पार्ट्स हुए ना। यस सर। तो इन सब पर साइकोलॉजिकली एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। समझ में आई बात? समझ में आ गई बात? यस हाँ? सर, यस सर, यस मतलब सर। ये कंप्लीटली आप लोगों को समझना चाहिए और हमें उत्तर देना चाहिए था। हाँ, प्रदीप जी ने बहुत अच्छा प्रयास किया, कांग्रेचुलेशन प्रदीप जी। थैंक यू सर। हाँ, बहुत बढ़िया आपने बताया, बहुत बढ़िया ट्राई किया आपने। जी सर। हाँ। सर स्टेक होल्डर को प्रभावित करेगा। स्टेक होल्डर्स मीन्स रियल ओनर्स मीन्स इक्विटी शेयर होल्डर्स। जी सर। हाँ, इन केस ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी। So your last component was product elimination. तो हमने क्या बताया था इसको, कि the biggest problem of product elimination is one of psychological, means adverse psychological effect. यहीं पर थे ना हम लोग, यहीं पर थे ना। Yes, sir. Okay. The marketer, again I'm continuing. The marketer is reluctant to give up a product because he has committed to it in terms of money, efforts and time. मैंने ये चीजें उसने इन्वेस्ट की हैं प्रोडक्ट के साथ, क्या क्या, टाइम, एफर्ट एंड मनी, इसलिए उसको कष्ट होगा। ठीक है, बट समटाइम्स द प्रॉब्लम ऑफ प्रोडक्ट एलिमिनेशन आर कंपाउंडेड बाय एथिकल कंसिडरेशंस। माने एथिकल कंसीडरेशंस के कारण भी प्रोडक्ट को एलिमिनेट करना जरूरी हो जाता है, राइट? तो ड्यू टू दीज एथिकल कंसीडरेशंस व्हेन एलिमिनेशन ऑफ प्रोडक्ट इज कंपल्सरी, तो मार्केटर क्या करेगा? मार्केटर हैज द फियर एज टू व्हेन ही इज टू इन्फॉर्म द पब्लिक। तो डर सबसे एलिमिनेट, तैयार तो है वो एलिमिनेट करने के लिए, मगर सबसे बड़ा उसके मन में भय क्या है कि वो किस समय पब्लिक को इन्फॉर्म करे रिगार्डिंग एलिमिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड वेदर ही विल कंटिन्यू टू सप्लाई स्पेयर पार्ट्स एंड आफ्टर सेल सर्विसेज। अब समझ में आ गई बात? हमने फोर्ड का एग्जांपल क्यों लिया था? आप लोग लग रहा हो जबरदस्ती Yes, sir. जबरदस्ती का क्वेश्चन इसमें पूछा है, टाइम पास करते हैं, इसने फोर्ड का एग्जांपल ले लिया, बात को डील करते हैं।
एकता जी माइक ऑफ करिए। अरे यस भैया माइक ऑफ करो यार, तुम लोग क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो। ऑनलाइन का मतलब ये नहीं होता कहीं भी रास्ते में बैठे हो वहां बैठ के क्लास अटेंड करो फिर डिस्टर्ब होता है। सर घर पे बैठ के क्लास अटेंड कर अरे रहे हैं। घर में बैठे हो भाई तो भी माइक कम से कम ऑफ रखो यार, बीच बीच में आवाज आती है, कोई सर भी वो आवाज। कभी कभी ग्लिच हो जाता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। तो अब ये चीज समझ में आई। मार्केटर हैज द फियर एज टू व्हेन ही इज टू इन्फॉर्म द पब्लिक कि वो एलिमिनेट करने जा रहा है प्रोडक्ट को, रिगार्डिंग एलिमिनेशन, और and whether he will continue to supply spare parts and after sale services। फोर्ड का एग्जांपल आ गया यहाँ पर। बहुत दिनों से कंपनी प्लान कर रही थी प्लांट बंद करने के लिए, प्रयास भी था कि ना बंद हो, बट जब बिल्कुल टोटली चीजें अनफेवरेबल हो गई, अनवायबल हो गई, तो उसने बंद किया, मगर अनाउंस किया उसके साथ साथ उसने कहा कि नहीं हमारे स्पेयर पार्ट्स और आफ्टर सेल सर्विस और ये सब चलता रहेगा। अब समझ में आ गई बात, हाउ इंपॉर्टेंट दिस प्रोडक्ट एलिमिनेशन इज। Yes, sir. ओके, अगेन this product elimination should be based on financial analysis of the total history of the product. And sometimes product elimination helps in saving the firm from squandering away of costly raw materials, wiser alternative investment, taking full advantage of marketing opportunities, etc. It is like cutting the dead wood and lightening the body for its own sound health. That's all for the day. And product planning topic is over from my side. अरे कुछ समझ में आता है कि नहीं? कभी कभी हम बहुत घुमा के लैंग्वेज बोल देते हैं। हाँ, अभी ये लास्ट सेंटेंस हमने बोला, समझ में आ गया सबको? लास्ट सेंटेंस हमने क्या बोला, जरा रिपीट करिए। लास्ट सेंटेंस मैंने क्या बोला, प्लीज रिपीट। सर ये बोला आपने कि जो प्रोडक्ट एलिमिनेशन इट इज बेस्ड ऑन फाइनेंशियल एनालिसिस हिस्ट्री ऑफ द प्रोडक्ट, आई थिंक। ठीक है, उसके बाद भी बोला ना, बिल्कुल लास्ट सेंटेंस क्या बोला? बिल्कुल लास्ट सेंटेंस। टॉपिक इज ओवर फ्रॉम माय साइड। अरे भाई तुम तो बहुत महान आत्मा लग रहे हो। और उसके पहले प्रोडक्ट एलिमिनेशन में लास्ट लाइन क्या बोली कंक्लूजन में? प्रोडक्ट एलिमिनेशन वाले पॉइंट में बिल्कुल लास्ट लाइन क्या बोली? It is like cutting the wood, dead wood, and lightening the body for its own sound health. ये बोला था, सुना था? आपकी वॉइस ब्रेक हो गई थी उस समय। चलो कोई बात नहीं, अब सुन लिया। जी। मैंने कभी कभी जैसे होता है ना कि कोई चीज नुकसानदेह है, खराब चीज है, या जैसे मान लो आप लोग गार्डनिंग करते हो तो जो चीजें मैंने जो कुछ पत्तियां या कोई
उसकी ब्रांच कुछ खराब हो गई काट देते हैं, अलग देते हैं, कटिंग ट्रिमिंग करते हैं कि नहीं करते हैं? यस बोलो। सर, यस सर। और वो क्यों करते हैं? जिससे कि फिर पेड़ अच्छी तरह से एक नए तरीके से नए पेड़ निकले। हाँ बेटा, ट्रिमिंग इसलिए की जाती है सर क्योंकि नए पेड़ निकले और न्यू ग्रोथ के साथ में। यस, तो इसीलिए हमने बोला इट इज लाइक कटिंग द डेड वुड एंड लाइटनिंग द बॉडी फॉर इट्स ओन साउंड हेल्थ। हम लोगों के भी शरीर में अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है, कुछ है, तो हम क्या करते हैं कि वो प्रॉब्लम जल्दी से दूर हो और हम स्वस्थ हो, हमारी हेल्थ साउंड रहे, बढ़िया रहे। यही तो प्रयास होता है। जी सर। तो यहाँ बात काहे की हो रही है? एलिमिनेशन की। काहे क्या एलिमिनेशन? प्रोडक्ट का। कहाँ से होगा? कंपनी से होगा। और कंपनी की भी बॉडी है, माने आर्टिफिशियल पर्सन है। समझ आ गया? जी सर। अब हमें लग रहा है आप लोग ऊब गए, बंद कर दें क्लास आज, है ना? अरे ऑनेस्टली कोई तो बोलो। हाँ यस सर। हाँ, गुड। सर उबे नहीं है लेकिन बंद कर दीजिए। क्या कह रहे हो? सर उबे नहीं है लेकिन बंद कर दीजिए। अरे ठीक है, एक ही बात है, कहने का तरीका है तुम्हारा। तुम बढ़िया आदमी हो। यस तुमसे अच्छे हैं कि यस ने बिल्कुल क्लियर कट स्पष्ट बात कही। सर आरएम की क्लास भी काफी लंबी थी ना, तो एकदम से कॉन्टिन्यूअस चलता रहता है तो फिर ग्रास्प नहीं हो पाता है। नहीं, बात सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। मगर हमने एक दिन बोला था, ठीक है आज के कॉन्टेक्स्ट में हम नहीं बोल रहे हैं, मगर एक जनरल चीज हम बोल रहे हैं कि लिसनिंग बहुत जरूरी है। अभ्यास करना पड़ता है लिसनिंग के लिए, यस सर। है ना? यस। और कुछ ज्यादा पाने के लिए कुछ ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है, ठीक है? और प्रेजेंट टाइम में आप लोग सामान्य स्नातक या परास्नातक विद्यार्थी से ऊपर के स्तर पर आप लोग हैं, तो आप लोगों का स्तर या लेवल ऑफ कंसंट्रेशन, लेवल ऑफ लिसनिंग, ये सब चीजें उनसे अबव लेवल की ही होनी चाहिए। सर सारी चीजें ठीक है बट एक मतलब हम लोग अभी जिस माहौल में है कोविड को फेस कर रहे हैं, इसके रहते हुए कहीं ना ऑफिस जा सकते हैं ना कहीं जा सकते हैं। सर घर की नॉइस को भी एडजस्ट करना पड़ता है, तो